Hello students, today I am going to discuss uh, some more questions on UGC NET previous year question paper. So yesterday and day before yesterday I have discussed about propositional logic, and the second topic was truth table. Second topic was that COCOMO model. So I have discussed COCOMO model, propositional logic. So we'll be discussing some more topics in the further document. This is the document you can see I have made. So we'll be discussing these things in detail in further videos. So I'm trying. So I can do one thing. I can select it all and I can increase the size so that it will be visible. It will be visible. So application propositional logic we have discussed. मैंने बताया था कि propositional logic में क्या होता है. Propositional logic में quantifiers होते हैं. ये boolean algebra और artificial intelligence का पार्ट है. और इसमें क्या होता है? Propositional logic में for all there exists negation, conjunction, disjunction करके quantifier होते हैं. और जो ये होता है, मैंने इसका लॉजिक बताया था कि जो ये negation होता है वो not gate होता है. Negation is exactly the not gate, means one variable will be the opposite of another. Conjunction will be the AND gate, means both will be true, then it will be final will be true. और disjunction में क्या होता है, either of the one variable has to be true. So if one variable will be true, then you will be getting the final variable as true. Implication में क्या है? Implication में see both true then it is true and both false then it is true. Means अगर both true है तो true है और both false है तब true. Biconditional में क्या है? Both true then also true, both false then also true. So implication and biconditional ये दो अलग अलग क्वांटिफायर हैं जो हमने ट्रुथ टेबल में नहीं पढ़ा है. ये हम पढ़ेंगे एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में. इम्प्लीकेशन मतलब इसको बोलते हैं implies, P implies Q. तो P implies Q will be true if both will be true and both will be false, then the final will be true. In case of biconditional, both will be true then also it will be true, both will be false then also it will be true. लॉजिकल इक्विवेलेंस मैंने बताया था आपको, आइटम पोर्टेंट, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डी मॉर्गन्स लॉ. अब इसके एप्लीकेशंस कहाँ हैं? एप्लीकेशंस है मैथमेटिक्स में, फॉर्मल प्रूफ्स में, थ्योरम्स में, हम जो थ्योरम्स पढ़ते हैं. कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर साइंस में कहाँ इसका यूज है? बूलियन अलजेब्रा में, डिजिटल सर्किट में, एल्गोरिथम डिजाइन में. हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिथम हैं. हमारे पास एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर जब हम पढ़ते हैं तो हम बहुत सारे एल्गोरिथम पढ़ते हैं, उसको उसमें हम इसका यूज करते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए, रीजनिंग के लिए. फिलोसफी में है एनालिसिस ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए. नाउ देयर इज अनदर टॉपिक, इंफेरियल एडिक्वेसी. व्हाट इज इंफेरियल एडिक्वेसी? Inferior adequacy is a term used in logic and artificial intelligence to describe the capability of a logical system or reasoning method to derive all valid conclusion from a given set of premises. Inferior adequacy मतलब क्या करता है? ये एक टर्म है जो लॉजिक जो यूज होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लॉजिक डिराइव करने के लिए, किसी चीज़ का किसी एक्सप्रेशन से लॉजिक या रीजनिंग डिराइव करने के लिए. It is a measure of how well a system can infer or deduce all necessary information from the data it has. मतलब हम किसी expression से कैसे उसका main conclusion derive कर सकते हैं, that is inferior adequacy. इसका key concept क्या है? Logical system से. Logical system क्या है? एक formal system है consisting of set of symbols है. हमने बहुत सारे set of symbols देखे, जैसे phi है, for all है, there exists है, negation है, conjunction है, disjunction है, implication है, biconditional है. Rules for combining these symbols into formulas हम इसको convert करते हैं. जैसे
P equals to it is raining, and मैंने आपको बताया था if P equals to it is raining and Q equals to 2 plus 2 equals to 4. तो इस केस में P and Q क्या होगा, क्योंकि दोनों ट्रू स्टेटमेंट है तो P and Q दोनों ट्रू होगा. ओके, P and Q दोनों ट्रू होगा. Now what is premises? Premises क्या है? Initial statements or assumption that are taken to be true within the context of the logical system. That is premises. Premises initial statement और assumption. जैसे हम assumption लेते हैं P equals to it is raining, फिर हम assumption लेते हैं Q equals to it is not raining, और हम कोई इनवैलिड कंक्लूजन लेते हैं तो प्रीमाइसेस होगा. कंक्लूजन क्या है कि बेस्ड ऑन, जैसे हमने वेन डायग्राम पढ़ा, बेस्ड ऑन द प्रीमाइसेस हम कोई कंक्लूजन डिराइव करते हैं. स्टेटमेंट डाटा डिराइव फ्रॉम द प्रीमाइसेस यूजिंग द रूल ऑफ द लॉजिकल सिस्टम. अब इसके कुछ रूल्स हैं जिसको बोलते हैं इनफेरेंस रूल. रूल जो डिफाइन करता है लॉजिकल स्टेप्स. जैसे कुछ कुछ रूल्स है जिसको बोलते हैं मॉड्यूल्स पोनेंस एंड मॉड्यूल्स टॉलरेंस. ये दोनों कुछ रूल्स हैं, ये हम एआई में देखते हैं, ये दोनों यूज होते हैं. नाउ टाइप ऑफ इंफेरियल एडिक्वेसी. पहला है साउंडनेस. अ सिस्टम इज साउंड इफ ऑल द कंक्लूजन इट डिराइव आर ट्रू. मतलब ये टोटोलॉजी फॉलो करना चाहिए. टोटोलॉजी मतलब मैंने जो आपको बताया, वो द एक्सप्रेशन विल बी, मतलब फाइनल कंक्लूजन क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, तब वो सिस्टम साउंड होगा. Provided that the premises are true. In other words, it does not produce any false conclusion from the true premises. अगर दोनों condition true है, P and Q दोनों true है, तो ये उसका conclusion false नहीं होगा. दूसरा है completeness. A system is complete if it can derive every conclusion that is logically implied by the premises. एक सिस्टम कंप्लीट है अगर ये डिराइव करता है हर कंक्लूजन को जो इम्प्लाइड होता है, जैसे P implies Q, A implies B. This means that if a conclusion is true in all the models where the premises are true, the system should be able to derive the conclusion. अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? ऑटोमेटेड थ्योरम प्रूविंग में हम जो कंप्यूटर ऑटोमेटा पढ़ते हैं, ensure that all necessary theorems can be derived from a given set of axioms. हम ये जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है? रोबोट को काम कराना. तो जैसे हम, हमारा स्टिम्यूली होता है, जैसे हमें कोई जब पिंच करता है तो हमें जो दर्द होता है, तो हमारे एक नर्वस सिस्टम में एक रिएक्शन जाता है कि हाँ समथिंग हैपेंड टू आवर बॉडी. वैसे ही उसको इंस्ट्रक्शन देना एक मशीन को कि यू हैव टू डू समथिंग. उसके लिए हमारे पास एक्सियम्स होते हैं. एक्सियम्स एआई में. Knowledge representation and reasoning guarantee that an AI system can infer all the relevant information from the knowledge base. ये एक तरह ये कॉन्सेप्ट है एआई का, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग, जो ये इंश्योर करता है कि जो भी उसको इनपुट दिया जाएगा मशीन को, वो उसको आउटपुट करके प्रॉपर्ली डिराइव करे. फॉर्मल वेरिफिकेशन वेरीफाई दैट अ सिस्टम बिहेव एज एक्सपेक्टेड अंडर ऑल पॉसिबल कंडीशन. किसी भी मशीनरी को, या फिर जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम देखते हैं, सॉफ्टवेयर बनने के बाद उसका टेस्टिंग होता है, उसकी कोड की टेस्टिंग होती है, उसके प्रोसेस की टेस्टिंग होती है. तो फॉर्मल वेरिफिकेशन मतलब ये जो एआई है उसका भी फॉर्मल वेरिफिकेशन होता है कि जैसा हम चाहते थे, हम जैसा सोचते थे कि इसका आउटपुट वैसे होगा, उस अकॉर्डिंग हमने प्रोग्रामिंग करी है, तो वो फॉर्मल वेरीफाई करके ही हमने उसे क्लाइंट को सौंपा. नाउ एग्जांपल, propositional logic. Propositional logic में inferior adequacy involve being able to derive all possible truth value for a given set of proposition using logical connective and inference rule. Propositional logic में inferior adequacy क्या करता है? ये सारे truth value को derive कर देता है using जितने भी connectives है और जितने inference rule. मैंने आपको inference rule बताया, Morden's, Tollens and Collins. Now first order logic. First order logic क्या है? First order logic में inferior adequacy means being able to derive all possible conclusions involving quantifier and predicate from a given set of axioms and inference rule. First order logic ये कुछ इस तरह से ही है. इसमें inferior adequacy डिराइव करता है कि सारा पॉसिबल कंक्लूजन, बस एक कंक्लूजन नहीं, उससे जितने कंक्लूजन डिराइव हो सकते हैं सारे डिराइव हो जाए.
तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? ये बस डिराइव कर रहा है ट्रुथ वैल्यू, लेकिन ये डिराइव करेगा जितने पॉसिबल कंक्लूजन, मतलब प्रोपोजिशनल लॉजिक डिराइव करेगा ओनली ट्रुथ वैल्यू, एंड फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक डिराइव करेगा ऑल द पॉसिबल कंक्लूजन। अब इसके चैलेंजेस क्या है? अचीविंग इंफेरियल एडिक्वेसी कैन बी चैलेंजिंग। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो यहाँ पे भी वो कॉम्प्लेक्सिटी है। लॉजिकल सिस्टम में हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीमाइसेस एंड पोटेंशियल कंक्लूजन। हो सकता है हमारी प्रीमाइसेस बहुत ज़्यादा हो, जैसे वेन डायग्राम में होता है। मेकिंग द इन्फेरेंस प्रोसेस कंप्यूटेबिलिटी इंटेंसिव। कंप्यूटेबिलिटी मतलब कैलकुलेशन को ये कॉम्प्लेक्स कर सकता है। अनडिसाइडेबिलिटी, कुछ लॉजिकल सिस्टम में जैसे फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में ये इम्पॉसिबल होता है कि वो डिसाइड हो जाए, वो हो सकता है इनफाइनाइट में चलता रहे। Now ensuring imperial adequacy, तो इसको इंश्योर कैसे करेंगे कि imperial adequacy किसी भी प्रोपोजिशनल लॉजिक में या फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में हमने अप्लाई किया है। पहला तो वेरीफाई करेंगे कि साउंड है कि नहीं, देखेंगे कि जितने रूल्स और मॉड्यूल्स पोनेंस और टोनेंस है कि नहीं। वेरीफाई कंप्लीटनेस, वेदर वो जो कोड है वो कंप्लीट है कि नहीं। इसका प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है? प्रूफ सिस्टम, जैसे मैथ्स में जो हम प्रूव करते हैं, फॉर्मल प्रूफ सिस्टम दैट आर बोथ साउंड एंड कंप्लीट, जैसे नेचुरल डिडक्शन और सीक्वेंट कैलकुलस। हम जो कैलकुलस का बहुत सारा मैथ्स में कैलकुलस का थ्योरम्स है उसको हम प्रूव कर पाते थे। फिर ऑटोमेटेड रीजनर्स, इम्प्लीमेंट ऑटोमेटेड रीजनिंग टूल दैट कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स इन्फेरेंस टास्क। इसका कंक्लूजन क्या है? इंफेरियल एडिक्वेसी का कंक्लूजन क्या है? ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है लॉजिकल सिस्टम का, जो इंश्योर करता है कि जितना भी वैलिड कंक्लूजन है किसी भी प्रीमाइसेस से वो निकले। और इट इज क्रिटिकल फॉर एप्लीकेशन इन ऑटोमेटेड रीजनिंग, formal verification and artificial intelligence, where the ability to infer all the necessary information accurately and completely is essential. Now there is a new concept that is virtual page number. It is also an important concept. हमने क्या क्या डिस्कस किया? इनफेरियल हमने इनफेरियल एडिक्वेसी, फिर हमने TCP/IP प्रोटोकॉल डिस्कस किया, फिर हमने कोकोमो मॉडल डिस्कस किया, तो हमने और फिर हमने कोकोमो मॉडल के फॉर्मूलाज और TCP/IP और OSI मॉडल को कंपेयर भी किया। अब हम वर्चुअल पेज नंबर देखेंगे। The concept of virtual page number (VPN) is integral to the functioning of virtual memory system in modern computer architecture. ये VPN जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का सब्जेक्ट है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक टॉपिक है। Virtual memory allow a computer to use more memory than what is physically available by using this space to simulate additional RAM. हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था बफर। बफर मीन्स जब सिस्टम एक्स्ट्रा बफर स्पेस रखता है सो दैट उसको जब प्रोग्राम की कंपाइलेशन होती है तो उस वक्त एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत हो तो बफर को यूज करता है। वैसे ही वर्चुअल मेमोरी क्या करता है? यूज करता है मोर मेमोरी, अलाउ कंप्यूटर टू यूज मोर मेमोरी। अगर हमारे पास वर्चुअल मेमोरी होता है तो हम रिलैक्स रहते हैं कि हमारे पास वर्चुअल मेमोरी है, मतलब हमारे पास ज़्यादा मेमोरी है। What is physically available by using this space? तो वर्चुअल मेमोरी मतलब हम यूज करने के लिए हम हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा सकते हैं या फिर पेन ड्राइव, फ्लॉपी कुछ भी लगा सकते हैं। Here an overview of how a virtual memory page number fit into the system. कैसे ये फिट होता है सिस्टम में? पहला, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? A technique that gives an application impression it has contiguous and potentially limitless memory, even though the physical memory may be fragmented and limited. ये एक टेक्निक है वर्चुअल मेमोरी, मतलब ये एक टेक्निक है जो बताता है कि इसके पास कंटिन्यूअस मेमोरी है, पोटेंशियल लिमिटेड लिमिटलेस मेमोरी है, बहुत सारी मेमोरी है। इवन दो द फिजिकल मेमोरी में भी फ्रेगमेंटेड, मतलब फिजिकल मेमोरी को फ्रेगमेंट कर दिया गया, डिवाइड कर दिया है। हर प्रोसेस फ्रेगमेंटेशन भी कॉन्सेप्ट है जो हर बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और लिमिटेड, दूसरा पेजिंग, पेजिंग से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। A memory management scheme that eliminates the need for continuous allocation of physical memory. पेजिंग क्या है? एक मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है जो
एलिमिनेट कर देता है किसको, कंटिन्यूअस एलोकेशन ऑफ फिजिकल मेमोरी। हमें जो कंटिन्यूअस नीड होती है कि हमें अभी क्या है, दिस इज द टाइम ऑफ डेटा, सो वी आर हायरिंग पीपल ऑफ डेटा एनालिसिस। तो हमें क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, बहुत सारा स्पेस, हमें स्टोर करना है डेटा, हमें डेटा कंपाइल करना है, एग्जीक्यूट करना, फिर स्टोर करना, फिर डिलीट करना, फिर स्टोर करना, तो हमें पेजिंग चाहिए। The virtual address space of a process is divided into block of physical memory called pages. पेजिंग एक मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है जो मेमोरी की नीड को कम करता है फिजिकली। वर्चुअल एड्रेस स्पेस ऑफ अ प्रोसेस ब्लॉक्स में डिवाइड होता है, जिसको पेजेस पेजेस बोलते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। फॉर फर्दर आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।